ना। तो हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने वो कर लिया था, क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कर लिया था। ठीक है, तो फिर मैं आपको ये बता रहा था कि क्लासिफिकेशन बिकम डिफिकल्ट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस, एंड इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम एविडेंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज आर टेकन इनटू अकाउंट। तो राइट डाउन, नेक्स्ट वन लिखिए। क्लासिफिकेशन बिकम्स डिफिकल्ट, क्लासिफिकेशन, मॉर्निंग, classification becomes difficult when there is no supporting fossil evidence, when there is no supporting fossil evidence. In order to overcome this problem, in order to overcome this problem, evidences from evidences from different sources are taken into account, are taken into account. ठीक है, first write down numerical taxonomy or numerical taxonomy or Adansonian taxonomy or phonetics. Numerical taxonomy or Adansonian taxonomy or phonetics. ठीक है, तो तीनों एक ही चीज, सिनोनिम्स है। न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है? नंबर। इट इज नोन एज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी बिकॉज वी टेक इनटू अकाउंट लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर। एडन्सोनियन टैक्सोनॉमी इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज इट वाज फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस्ड बाय एडनसन। ठीक है, फोनेटिक्स मतलब जिसको आप देख सके, ऑब्जर्व कर सके, तो इट इज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, दैट्स व्हाई वी कॉल इट फोनेटिक्स। ठीक है, थ्रो डाउन। It is known as numerical taxonomy. It is known as numerical taxonomy because it is known as numerical taxonomy because large number of characters are considered. Large number of characters are considered. ठीक, next one देखिए. It is known as Adansonian taxonomy. It is known as Adansonian taxonomy because it was first time practiced by because it was first time practiced by Adanson, because it was first time practiced by Adanson. Next लिखिए. It is known as phonetics. It is known as phonetics because in this observable characters are considered. In this observable characters are considered. Observable characters are considered. ठीक, now
अब इसमें करते क्या हम लोग देखो, लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड, एवरी कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, ऐसा नहीं किसी कैरेक्टर का ज्यादा है किसी का कम। कैरेक्टर इज आइदर एब्सेंट और प्रेजेंट, या तो है या नहीं है। देन कोड इज असाइन टू एवरी कैरेक्टर, हर कैरेक्टर को कोड असाइन कर दिया जाएगा। एंड देन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर क्लासिफिकेशन इज डन, तो सारा डाटा को इकट्ठा करके इसको कंप्यूटर में फीड कर दिया जाएगा और उसके हेल्प से फिर क्लासिफिकेशन किया जाएगा। तो राइट डाउन इन दिस large number of in this large number of observable characters are considered in this large number of observable characters are considered. Every character is given equal importance. Every character is given equal importance. Next. Characters are either present or absent. Characters are either present or absent. Next. Code is assigned to every character. Code is assigned to every character, and with the help of computers with the help of computers, code is assigned to every character, and with the help of computers and with the help of computers classification is done. With the help of computers classification is done. ठीक है, लिख लिया ना। नेक्स्ट इज कीमोटैक्सोनॉमी. सेकंड इज कीमोटैक्सोनॉमी. ना नहीं मैडम, ये फाइलोजेनेटिक का नहीं है, आपको बताया ना कि व्हेन classification become difficult when there is no supporting fossil evidence, then evidence from other sources are taken. वो other sources ये हैं, ठीक है ना. कीमोटैक्सोनॉमी, जैसे मान लीजिए कोई रेड algae है, तो रेड algae में we have stored food as a Floridian starch. तो Floridian starch is a chemical. अब मान लीजिए कि हमने 10 प्लांट को एनालाइज किया, उसमें 3 प्लांट ऐसे थे जिसमें फ्लोरिडियन स्टार्च हमें मिला, तो हम कह सकते हैं दे आर रेड algae, दे आर रिलेटेड, बिकॉज ये केमिकल सेम ही है. So when taxonomical analysis is done on the basis of phytochemicals, that is chemicals present in plant, it is known as chemotaxonomy. Right on. When taxonomical study when taxonomical study is done on the basis of phytochemicals, that is chemical present in plant, phytochemicals, that is chemical present in plant, it is known as chemotaxonomy.
It is known as chemotaxonomy. Third, cytotaxonomy. Cytotaxonomy. जब taxonomical study is done on the basis of chromosome number, structure and behavior, number, structure and behavior, then it is known as cytotaxonomy. Right on? When taxonomical study is done, on the basis of chromosome number, structure and behavior, chromosome number, structure and behavior, then it is known as cytotaxonomy. Then it is known as cytotaxonomy. मतलब क्या हो, जैसे मान लीजिए दो ऑर्गेनिज्म है ए और बी, दोनों में 20-20 क्रोमोसोम मान लीजिए, तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बेसिस पे रिलेटेड है। अभी जैसे हम लोग ये सेल वाले चैप्टर पढ़ेंगे, 4 तरह का क्रोमोसोम होता है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक एंड एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, तो अगर मान लीजिए सब पांचों एक जैसा है, उन्हें 5-5 है सब, तो हम कह सकते हैं ना कि स्ट्रक्चर भी 20 में से पांचों चारों मतलब 4 सेट है 5-5 का, तो हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर के बेस से। बिहेवियर क्या होता है, जो क्रोमोसोमल मूवमेंट होता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। तो अगर आप क्रोमोसोमल मूवमेंट को देखें और वो अगर आपको सिमिलर दिख रहा है, तो आप कह सकते हैं ना कि जैसे मान लो मेटासेंट्रिक है, तो मेटासेंट्रिक में क्या होगा, सेंटर में यहाँ पे होगा, दोनों आर्म बराबर होंगे। अब यहाँ से ये पुल होगा तो ये ऐसे वी शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो इसको मेटासेंट्रिक कहेंगे कि वी शेप्ड स्ट्रक्चर बना रहा, दैट इज बिहेवियर। तो व्हेन टैक्सोनॉमिकल स्टडी इज बेस्ड अपॉन chromosome structure, number and behavior, then it is known as cytotaxonomy. Now, next heading is algae. Next heading is algae. तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, स्टडी ऑफ algae is known as phycology. Study of algae is known as बीच बीच में रुक रहा है क्या, आ नहीं रहा है क्या, क्या रुक रहा है, क्लियर नहीं विजिबल है? आपके नेट में कुछ प्रॉब्लम होगा, थोड़ा देखिए जसलीन। ठीक है, ओके, राइट ऑन। स्टडी ऑफ algae is known as phycology. PHYCOLOGY, phycology. ठीक है ना, अगर आप algae को देखेंगे तो algae is chlorophyll containing simple thalloid. थैलॉइड का मतलब क्या हुआ कि जो बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड नहीं है, थैलॉइड ऑर्गेनिज्म, primarily aquatic, can be present in freshwater or marine, but some of them are present on moist stone, some of them on soil, some of them on animal. ठीक है, थ्रा डाउन। Algae includes chlorophyll containing
Algae includes chlorophyll containing simple thalloid autotrophic mainly aquatic can be freshwater or marine organism. Algae include chlorophyll containing simple thalloid autotrophic mainly aquatic can be freshwater or marine organism. ठीक है नेक्स्ट पॉइंट लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए some of them are present on moist stone. Some of them are present on moist stone, on soil, on wood, as symbiont in lichen, as symbiont in lichen, or on animal in bracket write down epizoic, as on sloth bear, on animal in bracket write down epizoic, as on sloth bear. Next one लिखिए some are parasitic, some are parasitic. For example, some are parasitic. For example, green algae Cephaloros, green algae, Cephaloros, Cephaleus. Cephaloros is responsible for red rust of tea. लिख लिया सबने ओके ना अगर हम algae को देखें तो इसका साइज जो होता है ये हाईली वेरिएबल होता है. It can be unicellular like chlorella and chlamydomonas. It can be colonial like volvox. It can be filamentous like Spirogyra, Eulothrix, Ectocarpus, etc. It can be parenchymatous like Alva. It can be heterotrichous like Coleucate, or it can be very tall, can attain height up to 100 meters. They are referred as kelps, like macrocystic kelps are brown algae. Third one, thallus structure of algae is highly variable. Thallus structure of algae is highly variable.
It can be unicellular, can be unicellular like chlorella and Chlamydomonas colonial like Volvox filamentous like Eulothrix Spirogyra Ectocarpus Eulothrix Spirogyra Ectocarpus etc. ठीक है. Can be parenchymatous, can be parenchymatous like Alva, can be parenchymatous like Alva, Heterotrichus that is Coleochaete. हेट्रोट्राइकस समझा दो क्या होता है तो लिख लीजिए हेट्रोट्राइकस दैट इज कोलियोकीट and some of them are very tall, some of them are very tall, can attain height up to 100 meter, some of them are very tall, can attain height up to 100 meter, known as kelps, in bracket write down brown algae, known as kelps like Macrocystis, like Macrocystis. ठीक है ना. अब देखो यहाँ पे दो तीन चीज समझने का है जो आपको केल्प्स के ब्रैकेट में लिख लीजिए. ब्राउन एल्गी को केल्प्स कहते हैं, लार्ज ब्राउन एल्गी को लाइक मैक्रोसिस्टस. ठीक है. अब इसे हमने यहाँ पे यूनिसेलर एल्गी में क्लोरिला और क्लेमेडोमोनास का एग्जांपल बताया है. ठीक है. अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि एज पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा. तो आप ये मान के ही रखिएगा कि आपको तभी बताया था, फिर से बता रहा हूं कि डिपेंडिंग अपॉन द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन यू विल आंसर. अगर आपसे ये पूछा जाता है एज पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लोरिला एंड क्लेमेडोमोनास बिलोंग्स टू, देन यू विल से दे बिलोंग टू. स्क्रीन ब्लर है सबके लिए. ओके सुनाए, आवाज तो आ रही है. आवाज तो आ रही है. हाँ तो अभी आवाज इंपॉर्टेंट है, अभी ठीक हो जाएगा. नेट का मैं क्या कर सकता हूँ, फ्लक्चुएट करता हूँ. ओके तो मैंने आपको कहा कि
अगर आपसे ये पूछा जाए कि एज पर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमिडोमोनास और क्लोरेला किससे बिलोंग करते हैं, तो एज पर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमिडोमोनास एंड क्लोरेला बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटिस्टा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेलुलर algae, then you say it is Chlamydomonas and Chlorella. So depending upon the language of question you will answer. ये पहले ही बताया हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि आ चुका है, आगे भी आ सकता है ना। अब देखिए यहाँ पे दो चीज जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, एक है हमारा पैरेन्काइमेटस और दूसरा है हेट्रोट्राइकस। क्या होता है इसको समझ लीजिए, पैरेन्काइमेटस और हेट्रोट्राइकस। आप सबने बंद गोभी तो देखा होगा, कैबेज देखा है ना सबने। हाँ। आप कैबेज का एक पत्ता निकाले, किसी टेबल पे ऐसे फ्लैट कर दीजिए, एक लेयर बन गया, एंड दैट इज पैरेन्काइमेटस। ठीक है, कि थिन लेयर बनाता है, हो गया। दूसरा मैंने कहा हेट्रोट्राइकस। हेट्रोट्राइकस का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मान लो ये पेन है और दूसरा ये पेन है, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। तो किसी भी एल्गी में व्हेन देयर इज अ डिफाइंड prostrate and erect system, prostrate and erect system, then such type of structure is referred as heterotrichous. तो कोलियोकिट में you will observe a defined prostrate and erect system. क्लियर है सबको ये? ठीक है ना। अब आप जब एल्गी को देखेंगे, मैंने कहा पैरेन्काइमा में क्या है कि आप एक बंद गोभी का एक पत्ता निकालिए और किसी फ्लैट सरफेस पे फ्लैट कर दीजिए इसको, ठीक है। तो जो सिंगल लेयर बना दैट इज पैरेन्काइमेटस लेयर। तो वैसे ही अल्वा होता है पैरेन्काइमेटस। ठीक है, हेट्रोट्राइगस का मतलब क्या है गरिमा, कि जैसे मान लो ये एक पेन है और ये एक पेन है, दो पेन हो गए। तो ये एक डिफाइंड इरेक्ट सिस्टम है और डिफाइंड प्रोस्ट्रेट सिस्टम है। तो व्हेन थैलस में ऐसा डिफाइंड सिस्टम हो, एक ऊपर की तरफ जा रहा हो, एक ऐसे हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा हो, तो इस तरह के हैबिट को हम लोग कहते हैं हेट्रोट्राइकस हैबिट, जो कि हमें कोलियोकिट में दिखता है। तो कोलियोकिट shows heterotrichous habit, that is there is a defined prostrate and erect system. समझ में आया? समझ में आया सबको? ओके, चलिए ना आगे बढ़ते हैं। अगर आप एल्गी को देखेंगे, ठीक है, तो एल्गी जो है, ओके, उसमें जो सेल वॉल होता है वो बाइलेयर होता है, ठीक है। इनर लेयर जो है हर algal ग्रुप में is made up of cellulose in every algal group. Nature of outer layer varies. Pradhan, in case of algae, cell wall is bilayered. In case of algae, cell wall is bilayered. Inner wall is cellulosic in. Inner wall is cellulosic in every algal group. Pradhan, cell wall is bilayered. Cell wall is bilayered in case of algae. Cell wall is bilayered in case of algae. Inner cell wall is cellulosic. Inner cell wall is cellulosic in every algal group. In every algal group, whereas nature of outer cell wall is variable.
नेचर ऑफ आउटर सेल वॉल इज वेरिएबल। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप आल्गी को देखेंगे तो आल्गी में पिगमेंट जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, लेकिन एक फोटोसिंथ नेचर ऑफ आउटर सेल वॉल इज वेरिएबल, हर एक में अलग अलग होता है। हम लोग करेंगे जब ग्रुप तो हम लोग बताएंगे आपको, मैं बताऊंगा आपको। थोड़ा डाउन, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इन algae different kinds of in algae different kinds of photosynthetic pigment is present. Different kinds of photosynthetic pigment is present. But chlorophyll A but chlorophyll A is present in every algal group। मतलब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का नेचर वैरी करता है, लेकिन क्लोरोफिल ए जब आप देखेंगे तो हर algal ग्रुप में, चाहे वो ग्रीन हो, रेड हो, ब्राउन हो, सब में प्रेजेंट हो। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ algae, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। In case of algae, reproduction can be vegetative, asexual, or sexual। In case of algae, reproduction can be vegetative, sexual, or asexual and sexual। Right, and first point लिखिए। Vegetative reproduction takes place by fragmentation। तो बताया हुआ है what is fragmentation। Vegetative reproduction takes place by fragmentation। Next point लिखिए। Asexual reproduction takes place by asexual reproduction takes place by production of different kinds of asexual spore, different kinds of asexual spore like motile, zoospore, non-motile, hypnospore, akinates, palmella stage, etc. Motile zoospore, non-motile hypnospore, akinate, palmella stage, etc. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। Sexual reproduction can be
आइसोगैमस, एन आइसोगैमस और oogamous. Sexual reproduction can be isogamous, anisogamous और oogamous. ठीक है, ये आइसो एनाइसो और ऊ तो मैं आपको बता चुका हूं, बताया ना आपको फंजाई में क्या होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous. हाँ, लेकिन यहाँ पे ना एग्जाम्पल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है, तो राइट डाउन. इन केस ऑफ क्लेमिडोमोनास स्पाइरोगायरा, in case of Chlamydomonas spirogyra, sexual reproduction is isogamous. Sexual reproduction is isogamous. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगैमस. यहां पे एक जो इंपॉर्टेंट चीज हमें जानना है कि इन केस ऑफ स्पाइरोगैरा आइसोगेमीट्स आर नॉन मोटाइल. राइट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. इन केस ऑफ स्पाइरोगैरा आइसोगेमीट्स आर नॉन मोटाइल. ठीक है, देख लिया. नेक्स्ट, ये नया एग्जांपल ऐड हुआ एनसीईआरटी में. ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा. इन केस ऑफ यूडोराइना, in case of Eudorina, in case of Eudorina, Udorina, Eudorina, sexual reproduction is anisogamous. Sexual reproduction is anisogamous. ठीक है ना. नेक्स्ट लिखिए. इन केस ऑफ वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस, in case of volvox and fucus, sexual reproduction is oogamous. Sexual reproduction is oogamous. ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जब आप एल्गी को देखेंगे तो एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, जाइगोट बना. हाँ, नॉन मोटाइल आइसोगेमीट्स. यस मनीष, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है और आगे भी आएगा. जब हम एल्गी को देखेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, जाइगोट बना. नॉर्मल नॉर्म क्या कहता है, जाइगोट फिर एम्ब्रियो में डेवलप होता है. बट एल्गी में जाइगोट इमीडिएटली अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन, इमीडिएटली उसमें मियोसिस हो जाता है. तो अगर इमीडिएटली मियोसिस उसमें हो गया तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट ये होगा कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा. तो देयर इज नो एम्ब्रियो स्टेज इन केस ऑफ zygote algae, as zygote form immediately undergoes reduction division or meiosis. So write down, in case of algae, there is no embryo stage, there is no embryo stage
because zygote formed because zygote formed immediately undergoes reduction division. Zygote formed immediately undergoes reduction division. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी. ठीक है. तो हम एल्गी को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं. ठीक है. एल्गी इज डिवाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट. सेकेंड, टाइप ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल. थर्ड, नेचर ऑफ सेल वॉल. फोर्थ, हैबिटेट इन दे आर फाउंड. और भी बहुत सारे क्राइटेरिया, बट मेन जो क्राइटेरिया दैट इज टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट. राइट ऑन. Algae is divided into algae is divided into different classes. Algae is divided into different classes on the basis of first, type of photosynthetic pigment present. Type of photosynthetic pigment present. In bracket write down most important criteria. Most important criteria. Second, nature of cell wall. Third, type of reserve food material present. Type of reserve food material present. Fourth, habitat. Fourth, habitat. ठीक है, एक्सेट्रा. ना, तो हमें 3 एल्गल ग्रुप पढ़ने हैं, दैट इज ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी. राइट डाउन. फर्स्ट हेडिंग लिखिए क्लोरोफाइसी. फर्स्ट राइट डाउन. क्लोरोफाइसी. क्या पूछा? फिफ्थ पॉइंट. यार क्या कहा, मुझे थोड़ा ना याद है कितना पॉइंट मैंने. पहला मैंने बोला टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. दूसरा मैंने बोला नेचर ऑफ सेल वॉल. चौथा बोला रिजर्व फूड मटेरियल. पांचवा बोला तीसरा बोला रिजर्व फूड. चौथा बोला हैबिटेट. इसके अलावा तो मैंने पांचवा पॉइंट बोला ही नहीं. यही 4 पॉइंट बोले मैंने, पांचवा कहां से आ गया? एक्सेट्रा बोला था. ठीक है, लास्ट हैबिटेट. ठीक है ना. ना तो नेक्स्ट हेडिंग इज क्लोरोफाइसी. फर्स्ट पॉइंट लिखिए. कॉमनली नोन एज green algae. Commonly known as green
algae. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. कैन बी फ्रेश वाटर, brackish water or marine. Can be fresh water, brackish water or marine. ठीक है. ब्रैकिश वाटर जानते हैं क्या होता है? जहां पे नदी जाके समुद्र में मिलती है ना, जिस पॉइंट पे, तो मीठा पानी आया नदी का, समुद्र का खारा पानी है, तो वहां पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा? कम होगा. ठीक है. तो ऐसे वाटर को हम लोग कहते हैं ब्रैकिश वाटर. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. दे कैन बी दे कैन बी यूनिसेलुलर, colonial or filamentous. They can be unicellular, colonial. साउंड नहीं आ रहा है? आवाज नहीं आ रही है? Okay. They can be unicellular, they can be unicellular, colonial और filamentous. फिलामेंट की तरह होता है, पतला सा ऐसे धागे की तरह. ठीक है. यूनिसेलुलर, colonial और filamentous. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. They are grass green in color. They are grass green in color because of dominance of chlorophyll A and chlorophyll B. They are grass green in color because of chlorophyll A and chlorophyll B. ठीक है ना. जब आप इसको देखेंगे, ठीक है, तो ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, इट इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, एंड द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन ग्रीन एल्गी इज हाईली वेरिएबल. ऐसा नहीं कि कोई फिक्स शेप का क्लोरोप्लास्ट है, अलग अलग एल्गी में अलग अलग शेप का है. तो डन. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन photosynthetic pigments are present in chloroplast, it is cup shaped in chlamydomonas, it is cup shaped in chlamydomonas. This shaped in chlorella, spiral in Spirogyra, horseshoe shaped in Eulothrix, star shaped in Zygnema, reticulate in Oedogonium.
cup shaped in Chlamydomonas, disc shaped in Chlorella, spiral in Spirogyra, horseshoe shaped in Elothrix, star shaped in Zygnema, and reticulate in Oedogonium. ठीक है, लिख लिया ना। अब अगर अब याद होगा तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो सेल वॉल होता है algae में वो बाइलेयर होता है और इनर सेल वॉल हर algal ग्रुप में क्या का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है और नेचर ऑफ आउटर सेल वॉल इज वेरिएबल। तो यहाँ जो आउटर सेल वॉल जो है दैट इज मेड अप ऑफ पेक्टिन। डन। इनर सेल वॉल इज सेलुलोजिक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इनर सेल वॉल इज सेलुलोजिक and outer cell wall is made up of pectin or pectose. Outer cell wall is made up of pectin or pectose. ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। In many of the green algae within chloroplast a storage body is present and that storage body is known as paranoid। ठीक है, one or many paranoid is present। It consists of core of protein which is surrounded by starch sheath। ठीक है, सेंटर में प्रोटीन होगा और उसके चारों तरफ क्या होगा, स्टार्च शीट होगा। ठीक है, डन। इन मेनी ग्रीन algae और मेनी जो मोस्ट ऑफ द ग्रीन algae लिख लीजिए, मोस्ट ऑफ द ग्रीन algae पेक्टिन में मैंने ये बताया कि जो इनर सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना होता है और आउटर सेल वॉल जो होता है वो पेक्टिन का या पेक्टोज का बना होता है। सेम चीज है, पेक्टिन या पेक्टोज, ये बताया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मोस्ट ऑफ द ग्रीन algae in their chloroplast have one or more storage body known as paranoid, which consists of core of protein surrounded by starch sheath, which consists of core of protein surrounded by starch sheath। ठीक है, देख लिया ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, reserve food material in case of green algae is starch। Reserve food material in case of green algae is starch, but in some cases oil droplets are also present।
In some cases, oil droplets are also present, like Vaucheria, Vaucheria, like Vaucheria. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। Reproduction can be reproduction can be vegetative by fragmentation, asexual by production of zoospore, asexual by production of zoospore. Now, यहाँ पे थोड़ा सा जान लीजिए, जूस्पोर जो होता है, it is endogenously produced within zoosporangia. It has 2 to 8 flagella. बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, क्वेश्चन भी आया हुआ, आगे भी आएगा। 2 से 8 फ्लैजेला होता है। फ्लैजेला आर ऑफ इक्वल लेंथ, जितने ही फ्लैजेला होंगे सबका लेंथ क्या होगा, बराबर होगा। एंड दे आर इंसर्टेड एपिकली, मतलब यहाँ एपेक्स पे इंसर्शन होगा। समझ में आया मैंने क्या कहा? राइट ऑन। Zoospore is produced endogenously. Zoospore is produced endogenously within zoosporangia, endogenously within zoosporangia. Number of flagella in zoospore is 2 to 8. Number of flagella in zoospore is 2 to 8, which are of equal length, and they are inserted apically. मतलब एपेक्स में इंसर्शन होगा। They are inserted apically. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। Sexual reproduction can be isogamous. Sexual reproduction can be isogamous, anisogamous, or oogamous. Sexual reproduction can be isogamous, anisogamous, or oogamous. ठीक है, नेक्स्ट हमें ग्रीन एल्गी में कुछ एल्गी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना, थोड़ा ज्यादा नहीं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा जानना है। क्वेश्चन आता है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, मतलब एलोबरेट करके नहीं दिया, लेकिन कहीं डायग्राम दे दिया, कहीं थोड़ा सा लिख दिया है, तो वो हमें पता होना चाहिए जो हमारे मतलब का है। तो हमें कौन कौन से ग्रीन एल्गी के बारे में आना चाहिए? एक तो हमें क्लेमाइडोमोनास के बारे में, दूसरा हो गया हमारा वॉल्वॉक्स, तीसरा हो गया हमारा यूलोथ्रिक्स, चौथा हो गया हमारा स्पायरोगायरा, और पांचवा हो गया हमारा कैरा। इन पांचों के बारे में हमें
थोड़ा थोड़ा जानना है, बहुत डिटेल में नहीं जानना है। कौन है हिना खान? क्या क्लोरोफाइसी? अरे भाई डिफरेंट है भैया, क्लोरोफाइसी और ब्लू ब्लू ग्रीन algae ऑल टुगेदर डिफरेंट। वो प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है। हाँ भाई गरिमा, क्या पूछना बताओ। गरिमा कुछ पूछ रही थी। ओके, ऐसे ही हाथ खड़े अगर, ठीक है ना। तो वी विल स्टार्ट विथ क्लेमाइडोमोनास। राइट ऑन हेडिंग क्लेमाइडोमोनास। It is unicellular green algae. It is unicellular green algae having cup-shaped chloroplast, having cup-shaped chloroplast, and in chloroplast single paranoid is present. In chloroplast single paranoid is present. It is biflagellated. It is biflagellated. And in this eye spot is present. आई स्पॉट का मैंने आपको फंक्शन बताया हुआ है कि इट विल परसीव द लाइट एंड गाइड द मूवमेंट ऑफ क्लेमाइडोमोनास टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट. In this, eye spot is present. ठीक है. अब देखो, जब जूस स्पोर प्रोड्यूस होने वाला होता है तो क्या होता है, मैं कुछ लिखवाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ डायग्राम से समझा रहा हूं, आप एक बार समझ लो. अब मान लो इस क्लेमाइडोमोनास को जूस स्पोर प्रोड्यूस करना है, तो होगा क्या, इट विल कम टू रेस्ट. ठीक है. एंड विल withdraw its flagella. ठीक है. तो रेस्ट पे आ गया और अपने फ्लैजेला को इसने विड्रॉ कर लिया. ठीक है. अब क्या होगा, ये जो कंटेंट है, इट विल डिवाइड बाय फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन एंड देन ट्रांसवर्स डिवीजन. सो कंटेंट will divide by first longitudinal and then transverse division. ठीक है. तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, चार पार्ट में कंटेंट डिवाइड करके. अब क्या है, नाउ दिस स्ट्रक्चर is referred as zoosporangia, and within this zoosporangia we have 4 zoospore. Now this zoosporangia will rupture and these zoospores are released. तो zoospore रिलीज हो गया और ये फिर जर्मिनेट करके नया बना देगा. ठीक है. कभी कभी क्या होता है, ये एक आध बार क्वेश्चन ये आया हुआ है
कभी कभी क्या होता है, यहां तक पहुंच जाता है, इस पॉइंट तक, और यहां पे आके क्या हो जाता है, कंडीशन बिकम्स अनफेवरेबल। अब मान लो इस पॉइंट पे कंडीशन अनफेवरेबल हो गया और अगर जूस को रिलीज हो गया तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो रिजल्टेंट क्या होता है कि जितने भी इसके अंदर हैं, ये चार जो हैं, दे अगेन डिवाइड बाय longitudinal and transverse division. Longitudinal and transverse division. As a result, there is formation of a structure where there are four groups and each group with four cells. सबके अंदर चार ऐसे सेल होंगे। And this resembles green algae palmella, and that's why it is referred as palmella stage. ये देखने में ना ग्रीन algae palmella की तरह लगता है, and that's why we call it palmella stage. जल्दी से इसको बना लीजिए, जो जरूरत है मैं लिखवा दूंगा, जल्दी से बना लीजिए इसको। Write down. Sometime during production of zoospore, condition becomes unfavorable. Condition becomes unfavorable. As a result, zoospore is not released. Zoospore is not released, and it again divide sometime during production of zoospore. Condition becomes unfavorable. As a result, zoospores are not released. They again divide by longitudinal and transverse division. They again divide by longitudinal and transverse division to form a structure which resembles green algae palmella, and that's why it is known as palmella stage. That's why it is known as palmella. That's why it is known as palmella stage. Palmella, palmella stage. देख लिया? रिपीट डायग्राम मतलब
अरे भैया क्लेमिडोमोनास है, उसको जूस प्रोड्यूस करना है, वो रेस्ट पे आएगा, अपने फ्लैजला को विड्रॉ कर लेगा। फ्लैजला विड्रॉ हो गया वहां पे, उसके बाद क्या होगा कि इसका जो कंटेंट है पहले लॉन्गिट्यूडनली फिर ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगा, 4 पार्ट में डिवाइड कर गया, दैट इज जूस्पोर। और वो जो स्ट्रक्चर है जूस फ्रांजिया हुआ, जूस फ्रांजिया रप्चर करेगा, जूस को रिलीज हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है उस पॉइंट पे जाके कंडीशन अनफेवरेबल हो जाता है तो रिलीज नहीं होता है, फिर कंटेंट जो है दोबारा डिवाइड करता है लॉन्गिट्यूडनली एंड ट्रांसवर्सली, एक स्ट्रक्चर बना देता है which resembles green algae palmella, and that's why we call it palmella stage. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, क्लेमाइडोमोनास निवालिस, राइट डाउन, क्लेमाइडोमोनास निवालिस during unfavorable condition, produces thick walled non-motile spore, thick-walled non-motile spore known as hypnospore, ठीक है, known as hypnospore। ये जो हिप्नोस्पोर होता है ना, इसमें एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, and that red color pigment is known as hematochrome, and that's why this hypnospore is responsible for red snow, right on? क्या लिखा लास्ट पॉइंट, क्या लिखा बताएंगे, क्या लिख रहे थे, क्या लिखा लास्ट में? कोई बताएगा लास्ट क्या लिखा? Hypnospore, which contains a red color pigment, hematochrome, and it is responsible for red snow. It is responsible for red snow. ठीक है, लिख लिया? No. Next is Volvox. It is a colonial algae. Colony is also known as Synobium. It is a colonial algae. Colony is also known as Synobium. Next point लिखिए, every member of colony
is similar to chlamydomonas is similar to chlamydomonas. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, there is clear cut division of liver, LABOUR. There is clear cut division of liver between different members of the colony. Clear cut division of liver between different members of colony. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, daughter colonies. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, daughter colonies are present inside the parent colony. Daughter colonies are present inside the parent colony and release of daughter colony takes place. Release of daughter colony takes place as a result of disintegration of parent colony. मतलब ये पैरेंट कॉलोनी ब्रेक करेगा तभी ये डॉटर कॉलोनी रिलीज होगा। जैसे डायग्राम बना लीजिए, बन गया। ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज यूलोथ्रिक्स। नेक्स्ट हेडिंग इज यूलोथ्रिक्स। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।